Greetings in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। Jesus Christ is same as today and forever. यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा के लिए एक जैसा है। Jesus is the Lord of Lords and King of Kings. यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। One more opportunity God is giving in our lives to hear the word of God. हमारे जीवन में और ऐसा एक अवसर दे रहा है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने। Today we would like to share about freedom in Christ Jesus. आज हम यीशु मसीह में जो आजादी है इसके बारे में सुनेंगे। Jesus liberates our life. यीशु मसीह हमारे जीवन को मुक्ति देता है। He gives us freedom. वो हमारे जीवन में मुक्ति देता है। When Jesus gives us freedom, that freedom is perfect freedom. और जब यीशु मसीह हमें आजादी देती है, वो संपूर्ण आजादी है। If you turn with me to John chapter 8 and verse 36. और आप हमारे साथ निकालेंगे जॉन चैप्टर 8 और उसके वर्स 36 में। The word of God says, if the Son makes you free, you are free indeed. और वचन में ऐसा लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। When Jesus makes you free, you can experience total freedom in your life. जब यीशु मसीह आपको स्वतंत्र देते हैं तो आप सचमुच ही स्वतंत्र हो जाओगे। Many people are under bondage. बहुत लोग बहुत से ऐसे बॉन्डेज में हैं। They are not experiencing freedom in their lives. वो अपने जीवन में कोई आजादी को महसूस नहीं करते। Only Jesus can give them freedom. बस यीशु मसीह ही आपके जीवन में उस आजादी को दे सकता है। That's why the word of God declares that if the Son makes you free, you shall be free indeed. इसलिए वचन इस प्रकार से कह रहे हैं कि पुत्र अगर आपको स्वतंत्र करता है तो सचमुच आप स्वतंत्र हो जाओगे। We want to focus on 3 areas where Jesus wants to give you freedom. और हम आज 3 ऐसे भागों में देखेंगे जहां पे यीशु मसीह आपको वो पूरी आजादी देना चाहता है। Freedom from curses. आजादी हर एक शापों से। Freedom from sickness. हर एक बीमारियों से आजादी। Freedom from failures. और हर एक पराजयों से आजादी। Many people are under curses. बहुत लोग बहुत शाप में पड़े हुए हैं। Families are under curses. People are under curses. Something dark is operating in their life and we call it as curses. बहुत लोग शाप के अधीन में हैं, बहुत परिवार शाप के अधीन में हैं, बहुत लोग ऐसे अंधकार की शक्ति के अधीन में हैं, उसको हम श्रापित कहते हैं। Something is happening in their life which are not so good and they have no control over it. और उनके जीवन में ऐसे कई बातें आते हैं और वो अपने जीवन में कोई उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। Some dark forces are disturbing their life, standing against their progress. और उनके जीवन के पुरोगति के विरुद्ध में कुछ ऐसे अंधकार की शक्ति पड़ रहे हैं। Who can give them freedom? कौन उनको ये स्वतंत्रता दे सकती है? Bible says only Jesus can give them freedom. और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ही उनको ये स्वतंत्रता दे सकता है। In Galatians chapter 3 and verse 13 and 14, और गैलेशियंस 3:13 में ऐसा लिखा है, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. और वचन में ऐसा लिखा है कि मसीह ने वास्तव में शाप से हमें मूल चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाए जाए वो शापित है। Notice this verse, it says that Christ has redeemed us from the curse of the law. और ये वचन को हम ध्यान से पढ़ने से हमें मालूम हो सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें हर एक व्यवस्था से छुड़ाया। It says that, this verse says that curse is the product of law. और ये वचन कहता है जो शाप है वो व्यवस्था के कारण हमारे जीवन में आया। During the Old Testament time, people were under the Mosaic law. पुराने नियम में लोग जो थे वो मूसा के व्यवस्था के अधीन में थे। As they were under the law, it is written in the word of God, they were under a curse. और वचन में हम देख सकते हैं जब वो एक व्यवस्था के अधीन में थे
तो उसी समय वो एक शाप के अधीन में भी थे, Because curse is the product of the law. क्योंकि ये जो शाप है वो व्यवस्था का एक फल है। But in the New Testament, we are not under the curse. लेकिन नए नियम में हम किसी शाप के अधीन में नहीं हैं। If Jesus is your Lord, then you are under grace. अगर यीशु मसीह आपका प्रभु है तो आप अनुग्रह के अधीन में हैं। If you turn with me to John chapter 1 and verse 17, अगर आप हमारे साथ निकालेंगे जॉन चैप्टर 1 वर्स 17 में, there it is written that the law was given. और वहां पे ऐसे लिखा है कि वास्तव में मूसा के द्वारा दी गई थी व्यवस्था, But the grace, it is written about the grace came. और वचन में लिखा है कि जो अनुग्रह है वो आया। Law was given, but grace came. व्यवस्था दिया गया था लेकिन अनुग्रह जो है वो आया। That means grace is a person. इसका अर्थ है कि अनुग्रह जो है वो एक व्यक्ति है। Who is that? वो कौन है? What is his name? उसका नाम क्या है? His name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। Grace is a person. और ये जो अनुग्रह है वो एक व्यक्ति है। Love is a person. प्रेम जो है वो एक व्यक्ति है। Truth is a person. सत्य जो है वो एक व्यक्ति है। Healing is a person. और चंगाई जो है वो एक व्यक्ति है। His name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। If you accepted Jesus as your personal Savior and Lord, अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं then you are not under the law. तो आप एक व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं। You are under the grace of God. आप परमेश्वर की अनुग्रह के अधीन में हैं। If you are under the grace of God, then you have to experience the blessings of God. अगर आप उस अनुग्रह के अधीन में हैं तो आपको परमेश्वर की हर एक आशीषों प्राप्त करना है। When you study the Word of God, we see there are 3 groups of people on this earth. और जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हम देख सकते हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। Romans chapter 2 and verses 11 to 16. और रोमन्स 2 उसके 11 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं, The first group is people who accepted Jesus as their personal Savior and Lord. और पहले ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। They are the followers of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का पीछा करते हैं। The second group is Jewish people. They are the people who still follow the Old Testament law. और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो यहूदी हैं जो अभी भी व्यवस्था को पालन करते हैं। The third group is Gentiles. और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो गैर यहूदी हैं। They are not followers of Jesus Christ and also they are not obedient to the Old Testament law. वो तो मसीह के पीछे नहीं करते और जो व्यवस्था है उसके भी पीछे नहीं करते। According to the word of God, those people who are called as Gentiles, even their conscience is working as a law in their lives. और हम वचन में देख सकते हैं कि जो गैर यहूदी है उनको व्यवस्था दी गई नहीं है लेकिन उनके मन में उनके विवेक में व्यवस्था बनाया गया है। They don't have a law, उनके पास एक व्यवस्था नहीं है but their conscience works as a law in their lives. लेकिन उनका विवेक जो है वो उनके मन में एक व्यवस्था के प्रकार काम करता है। Otherwise, the law is written in their heart. हम दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है उनके हृदयों में लिखा गया है। If so, Jewish people are under law and also Gentiles are also under law. अगर यहूदी लोग एक व्यवस्था के नीचे हैं और गैर यहूदी भी एक व्यवस्था के नीचे हैं, So, very clear, they are all under a curse. तो ये बहुत ही साफ तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो सब एक शाप के अधीन में है। Only those people who have a relationship with Jesus Christ, they are under the grace of God. वही व्यक्ति जिनको यीशु मसीह से एक संबंध है वही उस आशीष के नीचे है। If you want to break the curses which are happening in your life, the first and foremost thing you have to accept Jesus as your personal Savior. आपके जीवन में आने वाले हर एक शापों से आपको मुक्ति चाहिए तो आपको पहली बात ये करनी चाहिए कि यीशु मसीह को आप अपने प्रभु ग्रहण कीजिए। Because only Jesus can break the curses which are happening in your life. क्योंकि यीशु मसीह ही आपके जीवन में जो श्राप है उससे आपसे मुक्ति दे सकती है। The word of God says that Christ has redeemed us from the curse of the law.
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें हर एक व्यवस्था से छुटकारा दिया है। That means only Jesus can redeem you from the curse of the law. इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह ही आपको संपूर्ण छुटकारा दे सकता है। When you are redeemed by Jesus Christ, then you are a blessed man of God. You are a blessed woman of God. और जब आप यीशु मसीह से छुटकारा पा जाते हैं तो एक आप आशीषित एक मनुष्य बन जाते हैं। If you study the word of God, redemption brings so many blessings in your life. और जब हम वचन में पढ़ते हैं, जो छुटकारा है वो हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर आता है। In Ephesians chapter 1 and verse 7, it says that through redemption your sins are forgiven. और एफिशियंस 1:7 में हम देख सकते हैं, जब हम छुटकारा प्राप्त करते हैं तो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। In Romans chapter 3 and verse 24, it says that you are justified because of the sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary. और रोमन्स 3:24 में लिखा गया है कि हमें पर यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा मिला है, इससे हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। And also Titus chapter 2 and verse 14 says that you are purified. और टाइटस 2:14 में भी लिखा है कि जब हमें छुटकारा मिलता है, हमें शुद्ध किया जाता है। So redemption includes forgiveness of sins. Redemption includes justification and purification. और हम देख सकते हैं, जब हमें छुटकारा मिलता है तब हमें पापों से मुक्ति मिलती है, हमें धार्मिक ठहराया जाता है और हमें शुद्ध किया जाता है। Not only that, through redemption you are adopted into the family of God. और बस यही नहीं, जब हम यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता मानते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में ले पालक पुत्र बन जाते हैं। Galatians chapter 4 and verse 4 and 5 says that you are adopted into the family of God. Romans chapter 8 and verse 15 says you are adopted into the family of God. परमेश्वर के वचन गलेशियंस 4:4 में कहते हैं कि हमें परमेश्वर के परिवार में ले पालक पुत्र बना दिए हैं। You are in the family of God. It means that God becomes your father. और आप आज परमेश्वर के परिवार में हैं, इसका अर्थ ये कि आपका पिता परमेश्वर है। He becomes your father, you becomes his son. वो आपके पिता बन जाते हैं और आप उनके पुत्र बन जाते हैं। That father-son relationship begins in the family of God. और एक जो पुत्र और पिता, वो संबंध हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। This is one of the greatest desire of God, to dwell among his people. ये परमेश्वर की बहुत बड़ी एक इच्छा है कि वह अपने जन के मध्य में वास करे। From Old Testament onwards, God is expressing his desire to dwell among his people. और पुराने नियम से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने जन के साथ रहना चाहते थे। In the Old Testament, he could not dwell in them. और पुराने नियम में वो अपने लोगों के अंदर वास नहीं कर सके। That's why he made a tabernacle among the people of God, and he was dwelling in the most holy place. और इसलिए वो अपने जन के मध्य में तंबू बनाकर परम पवित्र स्थान में बसा। But in the New Testament, God is not dwelling in the tabernacle. He's not dwelling in a building. He's dwelling in you and in me. और आज जो नए नियम में परमेश्वर कोई तंबू में या परमेश्वर कोई मकान में नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। We became the temples of the living God. हम आज परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर बन गए हैं। God is dwelling in us. यीशु मसीह आज हमारे अंदर वास करता है। This is an amazing truth. ये बहुत ही बड़ी एक सच्चाई है। Our God is such a great God. He is dwelling in us. हमारा परमेश्वर बहुत ही बड़ा एक परमेश्वर है और वो हमारे अंदर वास करता है। So if you are in the family of God, then you can talk to your God. अगर आप परमेश्वर के परिवार में हैं, तो आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। In the family of God, there is communication. और परमेश्वर के परिवार में हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। You can talk to God, and also God will speak to you. आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं और परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। Our God is a speaking God. हमारा जो परमेश्वर है वो बातचीत करने वाला है। Communication is there in the family of God. और परमेश्वर के परिवार में बातचीत होता है। That means if you are a son of God, then there is no confusion in your life. You know what is the will of God for your life.
अगर आप परमेश्वर के परिवार के एक पुत्र हैं तो आपके जीवन में कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Even if there come some struggles in your life, you can hear from God to solve those struggles. अगर आपके जीवन में कोई परेशानी भी आ जाती है तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। You become an heir